today I will discuss circular convolution. What is the difference between linear convolution and circular convolution, and the methods that are used to calculate circular convolution. Okay, so circular convolution is basically used to convolve to periodic sequences, whereas linear convolution is used for aperiodic sequences. So if you have a system, you are giving a signal, then you are getting the output. So what is the operation going on, that is known as convolution. The signal is convolved with the impulse response of the system. जो सिस्टम को कैरेक्टराइज करता है वो है आपके इम्पल्स रेस्पॉन्स. आपके पास वो सिस्टम है, आपने एक सिग्नल दिया, सिग्नल क्या हुआ, इम्पल्स रेस्पॉन्स सर कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपको आउटपुट दिया. ओके, सो convolution is used to get the response means output. Okay, so whenever you are doing for aperiodic sequence, you are calling that linear convolution. But in case of periodic sequences, means if you are convolving periodic sequences, that is known as circular convolution. Okay, so in case of linear convolution, I already discussed. Okay, suppose a signal x1n is equal to 1 2 3 4 5 and x2n is equal to 1 2 6. Suppose okay, so this is the starting point, this is the starting point for the second signal. Here the signal length L1 is equal to 5, here the signal length L2 is equal to 3. So in case of linear convolution, whenever you are convolving, let the output I am denoting as y of n. So x1n convolution x2n, this is the convolution symbol. So in case of linear convolution, what happens, what is the length? So output length will be 5 plus 3 minus 1, that is L1 plus L2 minus 1. So here the length will be 8 minus 1, that is 7. Okay, but in case of circular convolution, suppose you are convolving the same sequence using circular convolution. So the output length for the circular convolution will be equals to bigger length. Bigger length अभी क्या है, 5 है, so output length 5 होगा. So क्या करना है इसमें आप क्या करते हो, जो लेंथ है उसके हिसाब से आप कन्वर्ट करते हो. बट इन केस ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन विदाउट जीरो पैडिंग यू कैन कन्वर्ट. व्हाट इज जीरो पैडिंग देन? जीरो पैडिंग मीन्स अगर आपको बिगर लेंथ का सीक्वेंस अभी दिया है, दोनों डिफरेंट लेंथ दिया है, सो बोथ द सीक्वेंस आर हैविंग डिफरेंट लेंथ, देन यू नीड टू इक्वलाइज द लेंथ. सो हाउ यू कैन इक्वलाइज? बाय एडिंग zeros. So I am adding 2 zeros in the second sequence because here the length is 3. If I am adding 2 zeros, the length becomes 5. So this is known as zero padding. You are adding zeros to make the length same. Okay, and the output length will be equals to जो bigger length का length होगा that is 5 होगा in this particular example. Okay, means अगर different length है इसमें, पहले आपको इक्वलाइज करना है लेंथ को. अगर आपको प्रॉब्लम में दोनों का सेम लेंथ दिया है तो ऑब्वियसली आउटपुट तो सेम ही लेंथ रहेगा. बट अगर डिफरेंट लेंथ दिया है, जो बिगर लेंथ है एंड जो स्मॉलर लेंथ होगा उसमें और थोड़ा जीरोस ऐड करके बिगर लेंथ के साथ सेम करना है. करने के बाद आउटपुट का लेंथ जो बिगर लेंथ का साइज होगा उतना ही रहेगा. ओके, बिगर सीक्वेंस जो होगा उसका लेंथ जितना होगा उतना आउटपुट रहेगा. ओके, दैट मीन्स in case of linear convolution no need to do zero padding, but in case of circular convolution you have to do zero padding. Okay, so linear convolution without zero padding can be used to get filter response, but in case of circular convolution without zero padding you can't use to get the response. Okay, so that is the basic difference. Now I will tell you two methods to calculate circular convolution. There are basically two methods. The first method is concentric circular convolution. Okay, concentric circle method. Another is matrix multiplication method.
Okay, so another most important thing you will face in circular convolution is whenever you are doing linear convolution, whenever you are shifting the signal, the linear shifting happen in linear convolution, whereas in circular convolution circular shifting happen. circular shifting का मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ. circular shifting का मतलब है एक सर्कल है, सपोज आपके पास 4 सैम्पल्स है. दिस इज x10, दिस इज x11, x12 एंड दिस इज x13. x कर देती हूँ ताकि और एक बार ड्रॉ करती हूँ. जस्ट वेट फॉर एवर. सो दिस इज योर सर्कल. दिस इज x0, x1, x2 and x3. as it is used for periodic sequence x0, x1, x2, x3. फर्दर क्या आ जाएगा x0, x1, x2, x3. फर्दर क्या आ जाएगा x0, x1, x2, x3. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एक वीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. फर्दर 7 डेज के बाद क्या आएगा संडे आएगा. सो इट विल रिपीट आफ्टर 7 days. जस्ट लाइक दैट इन सर्कुलर कन्वोल्यूशन circular shift will happen, means after 7 days the same thing will happen. फर्दर 7 days के बाद आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जो पॉइंट आपको मिला था 7 days के बाद आपको, जैसे अभी मंडे से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर अगर मैं 7 days काउंट करूँगी उसके बाद मंडे ही आएगा. अगर मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करती हूँ, अगर 7 days काउंट करूँगी उसके बाद ट्यूसडे ही आएगा. सो इन केस ऑफ सर्कुलर शिफ्टिंग व्हाट हैपेंस. ओके, जब आप घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे मतलब शिफ्ट करोगे, 1 यूनिट शिफ्ट करोगे, तो ये ऐसा था, ये 4 पॉइंट ऐसा है. अभी इसको मैं शिफ्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट अगर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करूँगी ये ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा एंड ये पॉइंट इधर आ जाएगा. मीन्स ये x0 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा. ये x1 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा. ये x2 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा. एंड ये x3 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा. ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग मैं अभी कर रही हूँ. एंड अगर क्लॉकवाइज करूँगी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ओके, सो दिस सर्कुलर शिफ्ट विल बी यूज्ड इन योर concentric circle method. Okay, so I will take an example. See my lecture note and I will explain how to calculate circular convolution by using concentric circle method. I am not explaining the steps that I have written in the copy. Please see the steps, but in the problem itself I will explain. Perform the circular convolution of the following two sequences using concentric circle method. See, in the exam, in the question, if it is not mentioned to use a particular method, you can use any of the methods. You can use concentric circle method or matrix multiplication method. But if it is mentioned by using concentric circle method, then you have to solve the problem by using concentric circle method. Okay. So first, given x1n is equal to 2 1 2 1 and x2n that is equals to 1 2 3 and 4. Another important thing is, यहाँ पे मैं 0 पॉइंट दी हूँ. एग्जाम में चाहे आपको 0 पॉइंट दे ना दे, क्योंकि ये पीरियोडिक है, आपको हमेशा यहाँ से 0 पॉइंट को कंसिडर करना होगा. द फर्स्ट पॉइंट जो होगा उसको 0 पॉइंट करना होगा. ठीक है. सी, यहाँ पे जो दोनों सीक्वेंस दिया हुआ है वो दोनों सीक्वेंस का लेंथ सेम दिया है. अगर फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस का लेंथ मैं डिफरेंट लेती 2 1 2 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 अगर होता, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक 0 ऐड करके दोनों को लेंथ 4 करना होता, उसके बाद जाकर मैं कन्वोल्यूशन करती. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीक्वेंस लेंथ दोनों का सेम दिया है. सो नो नीड टू इक्वलाइज बिकॉज ऑलरेडी दोनों का इक्वल लेंथ है. ओके. सो फर्स्ट क्या करना है आपको, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड. कंसेंट्रिक सर्कल मेथड मीन्स सर्कल को तो आपको पता है
कंसेंट्रिक मीन्स दोनों का सेंटर सेम है, तो 2 सीक्वेंस है इसीलिए पहले 2 सर्कल लेना होगा। अभी कितने सैंपल से, 4 सैंपल से, तो 4 ये सर्कल को मुझे 4 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना होगा। ओके, सो यहाँ पे भी वही सेम चीज़। सो सर्कुलर कन्वोल्यूशन आप कैसे करोगे, पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ। लेट x3m be the output, so I am writing n equals to 0 to n minus 1 x1 n x2 m minus n। सी लीनियर कन्वोल्यूशन में भी इस फॉर्मेट में था, लेकिन ये जो सर्कुलर करके ब्रैकेट के अंदर ऐसे n देने का मतलब है कि यहाँ पे जो शिफ्टिंग आपका हो रहा है वो सर्कुलर शिफ्ट है, वो लीनियर शिफ्टिंग नहीं है। मतलब सर्कल के अंदर घूमते रहता है, वो चारों पॉइंट सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक है, बार बार वो रिपीट करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, तो कितनी बार आपको घुमाना पड़ेगा। सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ, एक बार घुमा दी, फिर आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो 0 पॉइंट में आप कैलकुलेट कर लिए, फिर एक बार घुमा दी, फिर एक बार घुमा दी, फिर एक बार घुमा दी, फिर एक बार जब घुमाऊंगी मेरा सेम इंस्टेंस आ जाएगा। मीन्स मुझे 0 से लेकर 3 तक मुझे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उसके बाद मेरा सेम चीज़ आएगा। ओके, सो इसका मतलब है आपको सर्कुलर शिफ्ट करना है एंड n पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे सैम्पल्स, ये n का मतलब है सैम्पल्स। आप कितना सर्कुलर जो शिफ्ट करो, अभी क्या क्या कितना नंबर्स ऑफ सैम्पल्स है। ओके, नाउ सी, so in this as I told you before that अगर सर्कुलर कन्वोल्यूशन में आपके दोनों का लेंथ सेम नहीं दिया है, पहले सेम कर लेना है, उसके बाद जो आपके बिगर सीक्वेंस का लेंथ होगा वो आउटपुट सीक्वेंस का लेंथ होगा। सो अभी आउटपुट का लेंथ क्या होगा, वही 4 होगा। ओके, क्योंकि अभी तो दोनों का सीक्वेंस लेंथ सेम दे दिया है, तो आउटपुट लेंथ मेरा क्या होगा 4, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 4 है तो इट विल गो अप टू n माइनस 1, सो 0 1, सो स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा कहाँ तक, n माइनस 1 तक। सो 0, अभी n का वैल्यू क्या है 4 है, सो अभी मुझे क्या करना है 0 से लेकर n माइनस 1 मीन्स 0 1 2 3 तक कैलकुलेट करना है। सो पहले क्या करोगे आप, x3 0 कैलकुलेट करोगे। सो x3 0 को क्या है x3 0, फॉर्मूला में पुट करो x1 n। अभी मैं किसका वैल्यू 0 पुट की हूँ, m का वैल्यू, जो आउटपुट सीक्वेंस है उसका इंस्टेंस का वैल्यू 0th इंस्टेंस में मुझे पहले कैलकुलेट करना है। x2 अभी इसमें 0 पुट करूँगी। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x1 n x2 minus n। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस, अगर मैं x1 n को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखती हूँ तो x2 n को भी एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगी, या x1 n को अगर क्लॉकवाइज लिखती हूँ तो x2 n को भी क्लॉकवाइज लिखूंगी। बट मैं एंटी क्लॉकवाइज यूज़ कर रही हूँ, एंड जो आपको यूज़ करना है वो सेम आप रखना, क्योंकि अगर आप इसको x1 n को क्लॉकवाइज x2 n को एंटी क्लॉकवाइज करोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सेम नोशन रखना है। ठीक है, अभी सी अभी x1 n, सो दिस इज x1 0, मैं एंटी क्लॉकवाइज रख रही हूँ, x1 1 x1 2 x1 3। सो फर्स्ट सीक्वेंस को आपको आउटर सर्कल में रखना है। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, x2 0 x2 1 x2 2 एंड x2 3। ये क्या है, ये x1 n है, ये x2 n है, बट मुझे अभी क्या चाहिए x2 माइनस n चाहिए। सी अगर आपके ऐसे चारों पॉइंट हैं, आपको क्या करना है, जैसे आप h ऑफ n में h ऑफ माइनस n आपको कैसे मिलता था, आप 0th पॉइंट में रख के ऐसे घुमा देते थे। ये अगर 0th पॉइंट है, घुमा दोगे तो ये दोनों पॉइंट्स इधर आ जाएगा, ये पॉइंट्स इधर आ जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, आपको पूरा घुमा देना है 0th पॉइंट में रख के। ओके, सो जब आप अल्टर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपके क्लॉकवाइज में जो था, एंटी क्लॉकवाइज में जो था, वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट सारे क्लॉकवाइज पॉइंट में आ जाएंगे। मीन्स सी
0 पॉइंट विल रिमेन एज इट इज़। अभी ये पॉइंट इधर आ जाएगा, पूरा घूम जाएगा। मतलब जैसे आपने क्लॉकवाइज लिया था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिया था, ये ऐसे आ रहा था। अभी अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसको इन्वर्ट करोगे तो सारे पॉइंट्स क्लॉकवाइज हो जाएंगे। मीन्स आपका क्या आएगा, x2 0, x2 1, x2 2 एंड x2 3। ओके, आपका ऐसा था, आपको ऐसे करना है तो सारे पॉइंट्स ऑल्टर हो जाएंगे। ऐसा था, आपको ऐसे करना है। ओके, ओके, नाउ आई एम राइटिंग ऑल द वैल्यूज। मीन्स पहले आप समझिए क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला है x1n x2 माइनस एन। तो x1n अगर क्लॉकवाइज रहेगा, अगर माइनस एन आप करते हो तो x1n अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो x2n भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन x2 माइनस एन जब करोगे वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या याद करना है, पहले जो पॉइंट्स है फर्स्ट सीक्वेंस को उसको एंटी क्लॉकवाइज रख लो एंड सेकेंड सीक्वेंस को क्लॉकवाइज पॉइंट्स रख लो, बस उसके हिसाब से अरेंज कर लो। बस इतना करना है, पहला सीक्वेंस को एंटी क्लॉकवाइज एंड सेकेंड सीक्वेंस को क्लॉकवाइज। कब करना है, जब आपको फॉर m इज इक्वल टू 0 जब आप कैलकुलेट करते हो x3 0, उस टाइम ये करना है। सो x3 0 का वैल्यू क्या होगा, अभी n इक्वल्स टू 0 to n माइनस 1। अभी n का वैल्यू क्या है, 4 है। सो 4 माइनस 1 दैट इज 3 x1n एंड x2 माइनस n। ओके, सो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद आपको समेशन कर लेना है। तो अभी x1 0 इन द प्रॉब्लम x1 0 का वैल्यू क्या है, 2 है। सो आई एम राइटिंग द वैल्यू 2 1 2 एंड दिस इज 1 एंड x2n का वैल्यू, x2 0 का वैल्यू 1 है। ओके, आई एम यूजिंग अनदर पेन देन इट विल बी हेल्पफुल। So this is 2 1 2 1 and x2 0 का वैल्यू है 1, x2 1 का वैल्यू है 2, देन x2 2 का वैल्यू है 3 एंड x2 3 का वैल्यू है 4। अभी क्या करना है आपको, करेस्पॉन्ड जैसे आप लीनियर कन्वोल्यूशन में आफ्टर शिफ्टिंग के बाद पहले आप एक सीक्वेंस को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे को शिफ्टिंग करते थे, शिफ्टिंग करने के बाद आप मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद एडिशन करते थे। सेम प्रोसीजर आपके सर्कुलर कन्वोल्यूशन में फॉलो होता है। तो आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 1 दैट इज, सो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे x1 0 x2 माइनस 0 वही सेम होता है, तो पहले ये 0 अगर आप पुट करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 1 into 4। उसके बाद क्या करना होगा, पहले आपके मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद समेशन लेना होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो सिंपल आपको याद रखना है, पहले सीक्वेंस को एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड सीक्वेंस को क्लॉकवाइज आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। ओके, सो दिस विल बी 2 + 2 + 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 14। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x3 0। नाउ आई एम डूइंग फॉर m इक्वल्स टू 1। सो फॉर m इक्वल्स टू 1 x3 1 will be equals to n equals to 0 to 3 x1 n x2 1 माइनस n। इसका मतलब क्या है, माइनस n तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ये सीक्वेंस जो है वो माइनस n है, x2 माइनस n है। अभी उसके साथ 1 माइनस n प्लस 1, जैसे आप वहाँ पे करते थे लीनियर शिफ्टिंग में, इस तरह अगर माइनस n प्लस 1 है, अभी आपको क्या कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज इस सीक्वेंस को एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट शिफ्टिंग करना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट शिफ्ट करोगे तो कैसा आएगा, एंड x1n जो है वो एज इट इज है, आपको जो भी शिफ्टिंग करना है वो सेकंड सीक्वेंस में करना है। सो आई एम राइटिंग द वैल्यूज x1 0 x1 1
x2 2 सॉरी x1 2 एंड x1 3। ओके, ये है आपकी सेकेंड सीक्वेंस। ये है आपकी सेकेंड सीक्वेंस। सेकेंड सीक्वेंस में आपको ये सेकेंड सीक्वेंस था जब आपकी ये x2 -n है। अभी 1 यूनिट आपको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टिंग करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ 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 जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, अभी x2 0 इधर आ जाएगा, x2 3 इधर आ जाएगा, x2 2 इधर आ जाएगा एंड x2 1 इधर आ जाएगा। अभी इसका जो वैल्यू है वो लिख लो। x2 0 का वैल्यू क्या था 1 था। x2 3 का वैल्यू था 4, x2 2 का वैल्यू सो 1 4 3 2। देखो ऐसा था 1 4 3 2 था, अभी ऐसा आ गया, ये 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 2 आ गया इधर। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज, व्हाट आर द वैल्यूज, 2 1 2 1। ओके, so now multiply 2 into 0 plus 2 into 1 plus 2 into sorry 2 into 2 2 into 2, then 3 into 1, then 3 into 1, then 4 into 2, then 1 into 1। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, आप ओनली डायरेक्टली वैल्यू को लिख देना। अभी करने के बाद एक बार आपने कर दिया, उसके बाद वैल्यू को डायरेक्टली लिखो। यहाँ पे 2 1 2 1। ओके, एंड उसके बाद अभी क्या आ जाएगा, इनिशियली क्या था 1 4 3 2, 1 4 3 2 था। अभी ये 1 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, 2 एक बार बस ऐसा था। अभी ये 4 पॉइंट्स ऐसा है, एक बार घुमाना है तो ऐसा ये आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ओके, सो अभी क्या होगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2। नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको बस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 3 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 1। करने के बाद आपको एडिशन करना है, 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 1, सो 60। So m for m equals to 1 the value is 16। next for m equals to 2 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इनिशियल जो सीक्वेंस है, मैं बस सीक्वेंस कर लिख रही हूँ। क्या था मेरा सीक्वेंस 2 1 2 1, सो 2 1 2 1। नेक्स्ट क्या करोगे, सेकेंड सर्कल में फार्मूला क्या होगा, x3 2 विल बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x1 n x2 2 minus n। मतलब जो आपकी -n सीक्वेंस था उसमें 2 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी आप एक टाइम घुमाने के बाद ये मिला है और एक बार घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है जो सीक्वेंस यहाँ पे मिला है उसको और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा एंड ये इधर आ जाएगा। सो क्या आएगा, मैं लिख रही हूँ, तो ये यहाँ पे 1 4 3 2। सी इजी क्या है, पहले आप लिख लो, पहले क्या है, पहला कैसा था 1 4 3 2, एक बार घुमाया, जो आप सीक्वेंस है ना 1 4 3 2, तो 1 यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर सीक्वेंस लिख दो 1 4 3 2। उसके बाद सेकेंड और एक बार घुमाओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 4 3 2, फिर एक बार घुमाओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 4 3 2। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ अभी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1. So this is coming 1 into 2. This is coming 6 plus 4 plus 2 plus 2. How much? 14. Okay. Just like that for m equals to 3. m equals to 3 के लिए आप क्या करोगे? और एक बार घुमाओगे. 2 1 2 1. This is a very easy method. अभी यहाँ पे है और एक बार घुमाओगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 4. तो आपको कहाँ से लिखना है? यहाँ से शुरू करना है. 1 4 3 2. सो अभी क्या कर देना है? आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3. सो हाउ मच द वैल्यू? पहले तो फार्मूला आपको लिख देना है. फार्मूला आप लिख दो. x3 n इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 x1 n x2 3 माइनस n. ओके. उसके बाद ये कर देना है 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 16. ओके. सो अगर फिर एक बार आप घुमाते हो ना, सी अगर मैं फॉर m इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट करती, ये 1 इधर आ जाता, 1 4 3 2 जो आपके इनिशियल सीक्वेंस था वही आ जाएगा. सो कुछ मैटर नहीं करेगा क्योंकि सेम चीज़ें आपको मिलेगा. इसीलिए आपको हमेशा जब आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन करते हो, जो आपकी बिगर लेंथ होगा उसको इक्वलाइज, उसके साथ स्मॉलर लेंथ को इक्वलाइज कर देना. उसके बाद आपको 0 से लेकर n-1 जो लेंथ है वो है n. उसके बाद 0 से लेकर n-1 तक आपको कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज़ द आउटपुट देन? x3n इज इक्वल टू x3 0 x3 1 x3 2 x3 3 ऐसे हम लोग लिखते हैं. सो 0 का वैल्यू क्या मिला था मुझे? 14 16 फिर 14 16. ओके. थैंक यू.